Okay. So I hope guys you are able to hear me properly and you are able to see the screen as well. Okay. So in today's lecture we are going to start CSS. Okay. So what is CSS? Okay. When I talking about the full form of CSS is that is cascading style sheet. Okay. As you are able to see here, the CSS stand for cascading style sheets. So when I talking about CSS is cascading style sheet. CSS describe how HTML element are to be displayed on the screen, paper, or its other media. Okay, CSS save the look, saves a lot of work. It can control the layout multiple web pages all at once, and external site sheets are stored in CSS file. So these are the overall usage of CSS. Okay. When I talking about HTML, so with the help of HTML we are creating a structure of our or a structure, or you can say layout of our web page. When I talking about CSS, so with the help of CSS we are designing our like that particular web page with the help of tags. So basically we are using selector to select that particular tag, and we are generally like changing the color, or for example we can change the color, we can change the text side, uh, we can write a heading tag and all with the help of style part. Okay, for example this is the normal website you are able to see. Okay, uh, if with the help of like HTML, if I'm writing this like website, if I'm creating this website, so first you are able to see like welcome to my home page, then use menu, select different style sheet, and here like we are using a CSS selector, and we are selected this entire home page and this paragraph, and after that we are changing that particular heading. Okay, and after that we are clicking here style sheet 1, then we are able to see this web page. Okay, if I'm clicking here style sheet 2, so you are able to see the same context is there, the same thing is there, but entire context is changed. Okay, similarly when I click to style sheet 3, so you are able to see now proper entire website, entire home page is changed. When I click over the style sheet 4, so you are able to see the proper look is changed of our website, right? Similarly, when no style sheet is there, when I'm using only an HTML, so we are able to see this is the proper HTML code. Okay, we didn't use CSS part in this page, in this sheet. Okay, but when I click here style sheet 1, so here like CSS used, so you are able to see the difference between a normal HTML code and with the help of CSS when we are doing some changes. Okay, so this type of design, this type of we can design our web pages with the help of CSS. Okay, so let's try to understand how we can use CSS. So in CSS guys, basically when I talking about this introduction part. Okay, so here like let's try to understand how we can use CSS. So CSS is used to define styles of your web page, including the design, layout, variation in display in different devices on screen sizes. Okay, so here here it's mentioned it's different devices, we can change the like look of any particular website for different devices with the help of media query. For example, if any particular user open any particular website in laptop, so that user are able to see that particular website in different mode. If the same user open that particular website in mobile phone, so they are able to see the different like style or different mode they can see, right? So that is possible with the help of CSS with the help of media query. Okay, so the first selector you are able to see, for example in our HTML code, and this is our HTML code. Okay, in lecture 3. Okay, this is the body tag, this is the entire HTML code you are able to see. Similarly, if you wanted to change any particular HTML
uh, body tag. If you wanted to change the entire color, entire background color, so first you need to write over their body tag. Inside a body tag you can change, you can write background color and you can change the color. Similarly, you can, if you wanted to change only like h1 tag, so with the help of that particular tag we can change the color and we can change the text align which is center, right? Similarly, you can change the like font family, font size. So these are the things we can do with the help of css. So let's try to understand how we can use css. Okay, so when I talking about css guys, so we can use css either internal css we can use, either we can create external css. So let's try to create a file. Okay, which is index.html. Okay, now I'm generating a normal HTML code. Okay, this is the normal HTML code. Okay, and I'm just writing here this CSS. Okay, for example, this is our h1 tag. Inside h1 tag, we are going to write our paragraph tag. Okay, we are going to write our paragraph tag. So in paragraph tag, we can write like that. Lower and 30. So by default, it will generate a proper text. Okay, I'm going to save this code and I'm going to click on go live button, and so it will redirect on this page and you are able to see this is the normal this is a h1 tag code and this is paragraph tag code. Now I'm going to use css uh, in this paragraph, in this like heading, right? So if you wanted to use if you wanted to use css, so most of the time my suggestion is go try to use css inside a head tag. Okay, so inside a head tag what you can write, we can create a style tag here, so we can just write over there style. Okay, insert inside a style tag we can select with the help of selector, we can select our h1 tag and we can change the color. So how we can change the color, just we can write here color and we can change the color like for example blue. Take, then save it and go that particular page. We are able to see previously like we are able to see this our heading is totally black and now we are able to see this is become blue. Okay, similarly if you wanted to change the text align of that particular website which is center, so just save it and you are able to see previously it's look like it is started from here and now it is aligned in the center. Okay, for example now I wanted to select this paragraph tag. Okay, so to select paragraph tag just I need to write here p tag. Inside a p tag, okay, inside a p tag I wanted to change the color of this paragraph tag. Okay, so for example I wanted to change background color, so I can just write background color and we can select any particular color, है ना? So for example मैं ये कर लेता हूँ select create it. So you're able to see now color is changed and now it's not changed like text color, it change of background color. Okay, है ना? अगर मन चाहो कि इसको भी अगर बैकग्राउंड कलर करना है, if you wanted to change background color of it, है ना, जैसे इसको ऐसे रिमूव करो, यहाँ पे लिखो बैकग्राउंड कलर, जस्ट सेव इट एंड यू आर एबल टू सी ऐसे बैकग्राउंड कलर हो गया. थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा हमें, सो कलर में मान जाओ कि रेड करना है मुझे, ठीक है, तो अभी रेड हो गया, है ना.
So that's how you can select our any particular tag with the help inside a style tag. You can select any particular tag and you can change the entire color of it, है ना. अगर फॉर एग्जांपल आपको लाइक मुझे दो बार सेलेक्ट करना पड़ रहा है H1 टैग एंड P टैग. ओके, आपको पूरा कोड एक ही बार लिखना है ना. सो यू कैन सेलेक्ट इंटायर बॉडी टैग एंड बॉडी टैग का ही कलर चेंज कर दूँ तो पूरा कलर चेंज हो जाएगा. सो this is the first way to change a color or change apply CSS here. This is known as inline CSS. Okay, this is known as inline CSS. Okay, because we are changing inside the HTML code only, है ना. So that is known as inline. Okay. Sorry, basically we are yeah, we can say like acha, either we can change like that in when I talk about inline, either we can change like that, either what we can do, for example, this is H1 tag, right? So inside the H1 tag, if you wanted to change this entire text, so just go to the inside H1 and we can type here style. Okay, and we can write here color is equal to, for example, etcon. Just save it and go here. You're able to see the color little bit change, right? So you can change like that as well. Inside a H1 tag you can just write a style and you can change the code. ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है. But it is not too much good. My suggestion is you try to use CSS always like that, uh, inside a style tag. Either you can use CSS in external, है ना. So external कैसे यूज करेंगे, let's see. So here, like in external, we can create a file. That file name is, you can just write link and CSS we can write here and press enter button. Okay, so what it is actually generated, it will generate the style sheet and inside it is given the style.css file link. Okay, just you need to acha, here you are not able to see the style.css file. तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे style.css पे एक बार क्लिक करो, देन कंट्रोल प्रेस करो और एक बार क्लिक करो. So जैसे ही प्रेस करोगे तो ये फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन देगा. सो यू कैन क्रिएट और फाइल लाइक दैट, है ना. तो यहाँ पे हम लोग फाइल क्रिएट कर सकते हैं एंड एक बार फाइल क्रिएट हो गया, सो यू कैन राइट दिस एंटायर कोड. यहाँ पे एक बार लिख लो, ठीक है. इसको सेव कर लो एक बार. सो यू कैन फॉर्मेट इट, ठीक है. सेव इट एंड गो ऑन दैट पर्टिकुलर पेज, है ना. तो अभी मेरा CSS अप्लाई हो गया, ठीक है. एंड कभी भी ध्यान रखना जब CSS यूज करना, तो ऑलवेज ट्राई टू लिंक दैट पर्टिकुलर CSS इन हेड टैग. हेड टैग मैं क्यों बोल रहा हूँ कि पहले मान लो कि जब एक्चुअली वेबसाइट रन होती है, वेबसाइट पे ब्राउज़र पे हमारा HTML का कोड एक्चुअली रेंडर होना शुरू होता है, तो सबसे पहले हमारा डॉक टाइप HTML रेंडर होता है. देन सेकेंड लाइन, उसके बाद हेड टैग रेंडर होता है. तो हेड टैग रेंडर होगा तो सबसे पहले हमारा CSS का कलर चेंज हो जाएगा, राइट. जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद हमारा बॉडी टैग और इंटायर HTML कोड रन होगा. तो पहले CSS का कलर आ जाएगा, बैकग्राउंड आ जाएगा, then text margin and there are different things which is happen on our web page, and after that body tag actually load to the browser. So this is too much good for you. For example, ऐसा नहीं है कि आप you can't like write CSS code inside a body tag, ऐसा भी कर सकते हो, but that is wrong practices, है ना. So always try to write inside a हेड टैग, ठीक है. इसको सेव करो, यहाँ पे चले जाओ. यू आर एबल टू सी लाइक दैट. ओके, सो गाइस नाउ यू आर एबल टू सी हाउ वी कैन apply like CSS in our HTML code.
कैसे मुझे लिंक से ऐड करके, है ना, उसमें CSS का कोड कर सकते हैं, ये भी आप देख सकते हो, है ना। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या क्या लिखा है, और मैंने यहाँ पे लिखा है बैकग्राउंड कलर, ओके, एंड कलर। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग हियर कलर, तो जैसे इंग्लिश में कलर को हम लोग लिखते हैं COLOUR, बट व्हेन आई टॉकिंग अबाउट HTML और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो कलर को हम लोग COLOR लिखते हैं, है ना। सो सो व्हेन आई टॉकिंग अबाउट दिस वन, H1 को हम क्या बोलेंगे, H1 इज ए सेलेक्टर, है ना। विद द हेल्प ऑफ दिस सेलेक्टर we are selecting our H1 tag, and after that we are using a property, that property name is color, है ना। एंड इसके अंदर हम लोग चेंज कर रहे हैं रेड, रेड इज अ वैल्यू। सिमिलरली व्हेन आई टॉकिंग अबाउट टेक्स्ट अलाइन इज अ प्रॉपर्टी एंड सेंटर इज अ वैल्यू। यहाँ पे देखेंगे तो पैराग्राफ टैग, P tag is a selector. With the help of P tag selector, we are changing the background color. Okay, what is the background color? Background color is a property and cadet blue is a value. Okay, so these are the things there. So I'm using here external CSS. With the help of external CSS, we can link, we can create a separate CSS file. Okay, we can create a separate like CSS file, and we can link the tag of that particular. We can link that particular code inside a HTML file like that. Okay. Yeah. Sir, what's mean by REM in name? REM. Acha, this one. अरे this is Yes, sir, REM. yeah, this is just for style sheet, है ना। जैसे मान लो कि कोई भी स्टाइल सीट, जैसे मान लो दिस इज दिस, आई वांटेड टू चेंज द स्टाइल ऑफ लाइक एनी पर्टिकुलर पेज, सो जस्ट आई एम यूजिंग ऑफ द REL स्टाइल सीट। अगर आपको दूसरा कुछ करना है तो यू कैन राइट ओवर देयर, है ना। ठीक है। आफ्टर दैट गाइज, अच्छा, फॉर एग्जांपल मुझे चेंज करना है कलर, है ना। तो कलर को चेंज करने के लिए देर आर लॉट ऑफ थिंग इज देयर। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मान लो कि मुझे पिंक यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पिंक ऐसे लिख के सेलेक्ट कर सकता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर कलर, है ना। एंड यहाँ पे बहुत सारे कलर्स दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा कुछ ग्रीन टाइप में करना है, यदि रेड करना है, या द ब्लू करना है ना, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे इस वाले कलर को चूज करना है, तो जस्ट क्लिक ओवर दियो, है ना, और क्लिक करके एक बार सेव कर लो और वो वाला कलर चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लाइक दैट। तो ये कुछ मार्जिन स्टार्ट करता है। फॉर एग्जांपल CSS सेलेक्टर लाइक में क्या होता है कि बहुत सारे कलर्स होते हैं, है ना। तो ये कलर का प्रॉपर रेंज है, मतलब आप हाफ भी, मतलब वाइट भी कर सकते हो, प्रॉपर ग्रीन भी कर सकते हो, एंड एनी अदर कलर भी यूज कर सकते हो, है ना। ओके, similarly like for example you wanted to change a color of it, so just इस पे एक बार क्लिक करो, it will open to it will open to for you, okay। एंड यहाँ पे कलर पे जाके जस्ट सेलेक्ट द इंटायर एनी पर्टिकुलर कलर, है ना, यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे भी कलर चूज कर सकते हो, है ना। यहाँ पे जनरेट करके देता है इन 3 कोऑर्डिनेट, ओके, 74, 64, 218, एंड उसके हिसाब से कलर चेंज हो सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, कलर में ऐसे कर सकते हैं, RGB का यूज़ कर सकते हैं, है ना। RGB का देख सकते हो क्या है, सेट द कलर ऑफ एन एलिमेंट टेक्स्ट वाइडली अवेलेबल अक्रॉस द मेजर ब्राउजर, बेस लाइन सिंस 2015। सो अगर 2015 से ये अवेलेबल है सब कुछ कलर का। अगर नहीं समझ में आता यू कैन जस्ट क्लिक ऑन MDN रिप्लेस एंड क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर लिंक, है ना, एंड यहाँ पे आके पढ़ सकते हो उसके बारे में। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी पर्टिकुलर थिंग, सो जैसे VS कोड पे वहाँ पे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रेल के बारे में पूछा, है ना,
तो रेल के बारे में किसी को आइडिया नहीं है, जस्ट क्लिक ओवर दिया, जस्ट कंट्रोल एंड क्लिक करो वहाँ पे, है ना, नहीं आ रहा, ओके फाइन, होना चाहिए क्या नहीं है ना। तो यहाँ पे जैसे आ रहा है तो देखो एट्रीब्यूट नेम रिलेशनशिप ऑफ द लिंक डॉक्यूमेंट टू द करंट डॉक्यूमेंट, एट्रीब्यूट मस्ट बी स्पेस सेपरेट लाइन, स्पेस सेपरेटेड लिस्ट, लिंक टैब, ओके। सो इसके बाद स्पेसेस होना चाहिए, देन लिंक टैब, दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन वन फाइल टू अनदर फाइल, ओके। Then when I'm clicking over there href, so inside the attribute specify the URL to link resources, and so we can, with the help of href, we can link the any particular URL link, we can add any particular URL link on that, and that is like all the things happened in 2015 only, right, है ना। तो ये देखना ध्यान से, ठीक। सो नाउ वी आर कवर गाइज दिस ऑल द थिंग्स, ओके। अभी देखो जैसे मान जाओ कि लाइक नाउ वी आर एबल टू सी हाउ वी कैन चेंज द कलर, हाउ वी कैन चेंज, अच्छा, कलर, लाइक वी आर एबल टू चेंज द कलर इन टू फॉर्मेट, like first one, either we can just put the color name, either we can select that particular color name, either there is one more format to change any particular color. So इसमें होता है ID selector, है ना, जस्ट लाइक कलर का एक हेक्साडेसिमल कोड होता है ना, जैसे FF000 लाइक दैट, जैसे सेव करोगे रेट का होता है ना। तो लिस्ट आपको मिल जाएगा, है ना। तो यू कैन जस्ट क्लिक ओवर देयर, है ना, एंड इसमें से भी कुछ सेलेक्ट कर सकते हो। देखो कलर का चेंज, जैसे मैं अलग अलग डिफरेंट जगह क्लिक कर रहा हूँ, सो वो हमारा कलर चेंज हो जा रहा है ऑटोमेटिक, राइट। So with the help of that particular hexadecimal code, we can change the color. And so there are three ways to change the color of any particular tag. Okay. First one, either we can just put that color name, either we can select with the help of RGB, and either we can use hexadecimal code. So there are three versions which we can use. Achha. When I'm talking about CSS selector, guys, so there are like 4 selector in CSS which we are using, है ना। so यहाँ पे हमने क्या करा है, हमने यूज करा है H1 select, H1 टैग, P टैग। तो जब हम किसी भी एलिमेंट का यूज करते हैं, मतलब इस तरीके से किसी भी टैग का यूज करते हैं, टैग का एलिमेंट का यूज करके उसके बाद चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, सो दैट इज नोन एज, इसको क्या बोला जाता है, एलिमेंट सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है, दैट इज नोन एज एलिमेंट सेलेक्टर। पी टैग भी हमारा क्या होगा, एलिमेंट सेलेक्टर। सिमिलरली अगर मान लो कि कुछ भी पूरा सब कुछ सेलेक्ट करना है एक ही बार, है ना, सो वी कैन सेलेक्ट लाइक दैट, वी कैन जस्ट राइट कॉलम देन लाइक दैट, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर कुछ भी हम लिख सकते हैं, प्रॉपर बॉर्डर, बॉर्डर GTS, बॉर्डर शैडो, बैकग्राउंड इमेज, जो भी चीज़ आ रहा है। जैसे मान जाओ कि मुझे लिखना है यहाँ पे, क्या चेंज कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड कलर आई वांटेड टू चेंज, है ना, बैकग्राउंड कलर एक्वा कर देना है पूरे इसका वेबसाइट का, है ना, मेंशन जो भी। Oh, sorry. So basically we need to create a class for it, and अभी हमने class नहीं बनाया तो it will not work. Okay. Then we have a class selector, then ID selector, ठीक है। so सभी प्रकार के सेलेक्टर को देखेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। then we have some text properties in our CSS code, है ना। so जैसे मान लो कि टेक्स्ट अलाइन है, टेक्स्ट अलाइन हम क्या क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वन आई एम रिटन होती है सेंटर, सेंटर के अलावा क्या क्या कर सकते हैं, जैसे मान जाओ ये वाला टेक्स्ट प्रॉपर सेंटर में आपको दिख रहा है, इसको लेफ्ट में करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट ही होता है ना। अगर मुझे लेफ्ट में करना है तो वी कैन राइट हियर लेफ्ट, लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट में हो जाएगा। इसी तरीके से इसको अगर मैं राइट में करता हूँ तो इसको हम राइट कर सकते हैं, तो ये राइट में हो जाएगा इस तरीके से। दिस इज द टेक्स्ट अलाइन, दिस इज नोन एज टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। सो 3 चीज़ें कर सकते हैं, आइदर हम टेक्स्ट को लेफ्ट में कर सकते हैं, आइदर हम टेक्स्ट को राइट में कर सकते हैं, आइदर हम टेक्स्ट को सेंटर में कर सकते हैं, है ना। तो अभी मैं सेंटर में कर देता हूँ,
because Incinta it looks good. ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट प्रॉपर्टीज है फॉन्ट वेट, है ना। तो जैसे मान लो कि फॉन्ट का वेट कितना है ना, मुझे करना है। जैसे मान लो कि H1 टैग के अंदर मुझे फॉन्ट चेंज करना है। तो आई एम जस्ट राइटिंग योर फॉन्ट। अच्छा, पहले तो फॉन्ट फैमिली चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो फॉन्ट फैमिली देयर आर लॉट ऑफ लाइक टाइम्स न्यू रोमन के बारे में पता होगा। देन काल्विया वी एस कोड में भी सॉरी व्हेन यू आर यूजिंग एम एस ऑफिस, राइट, एम एस ऑफिस में भी ये सारे फॉन्ट दिखते हैं आप लोगों को, है ना। सो वी कैन यूज दीज ऑल द फॉन्ट, है ना। तो मोस्टली हम टाइम्स रो न्यूमन्स वाला करते हैं। सो जस्ट लाइक जस्ट आई एम सेलेक्टिंग टाइम न्यू रोमन। एंड देखो अभी टेक्स्ट का काफ़ी थोड़ा अलग हो गया होगा, है ना। अगर मान लो कि मुझे कुछ और चेंज करना है, ठीक है। मुझे ये करना है, ठीक है। करके एक बार सेव करूँगा तो अभी देखो टेक्स्ट का कलर काफ़ी अलग हो गया, काफ़ी यूनिक हो गया, राइट। बट अच्छा नहीं लग रहा, है ना। तो हम क्या करेंगे, टाइम न्यू रोमन ही सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट आपको चेंज करना है। सो विद द हेल्प ऑफ फॉन्ट फैमिली वी कैन चेंज द इंटायर like font of that particular tag, है ना, ठीक है। देन फॉन्ट का वेट भी होता है ना। फॉन्ट का वेट लाइक वी कैन, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट, देन वी कैन राइट वेट, ओके। फॉन्ट का वेट मैं लिख सकता हूँ फॉर एग्जांपल 200, है ना। 200 लिख के मैं सेव करूँगा तो अभी देखो थोड़ा बड़ा हो गया, ये वाला प्रॉपर थोड़ा बड़ा हो गया, है ना। सिमिलरली इफ आई एम राइट होते हो 500 एंड सेव करो तो अभी देखो, ठीक है। तो फॉन्ट का वेट थोड़ा बड़ा हो जाता है ना। तो इट इज़ रेंज बिटवीन 100 टू 900, तो उसमें हम फॉन्ट का वेट उसी हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक वी कैन राइट लाइक दैट एज वेल। फॉन्ट का वेट हम नॉर्मल लिख सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल ही होता है ना। तो नॉर्मल जब लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कंसीडर होता है 400 के लिए, है ना। अपार्ट फ्रॉम 400 लाइक यू कैन राइट बोल्ड ओवर दियर, है ना, दैट इज ऑल्सो वर्क। थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, है ना। जब हम बोल्ड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट देखो इसके अंदर कुछ तो नहीं आ रहा, ओके, बोल्ड के लिए कुछ नहीं आ रहा, ओके फाइन। सो ऐसा तरह बोल्डर भी होता है, तो बोल्डर वी कैन यूज बोल्डर एज वेल, है ना। तो आइदर नंबर में यूज करके कर लो, आइदर वी कैन यूज दीज ऑल द थिंग्स। लाइटर भी आता है, लाइटर के अंदर ऐसे होता है ना। सो दीज आर द फॉन्ट वेट, है ना। आइदर वी कैन यूज लाइक दैट, आइदर वी कैन जस्ट पुट ओवर द नंबर बिटवीन 100 to 900, ठीक है। फॉन्ट का साइज भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, है ना। तो जैसे जो भी ये फॉन्ट मेरा दिख रहा है ना, फॉन्ट वी कैन चेंज द साइज हम लोग एक्चुअली पिक्सल में देते हैं, है ना। सो वी कैन जस्ट राइट 2 पिक्सल, है ना। और इसको देखो 2 पिक्सल काफ़ी छोटा हो गया, है ना। तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे 100 पिक्सल एंड जस्ट सेव इट। 100 पिक्सल काफ़ी बड़ा हो गया, है ना। इस तरीके से हम लोग पिक्सल में हम लोग दे सकते हैं किसी भी चीज़ों को चेंज करने के लिए। देखो 10 पिक्सल में काफ़ी छोटा दिख रहा है, राइट, है ना। तो लेट्स पुट ओवर देयर फॉर एग्जांपल 30 पिक्सल, अभी 30 पिक्सल में नॉर्मल हो गया। तो इस तरीके से फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्सल। देन इफ़ यू वांटेड टू चेंज द लाइन हाइट, लाइन का भी, किसी भी लाइन का हाइट चेंज कर सकते हो। जैसे ये पूरी लाइन है आपके, है ना, और इस लाइन का आपको हाइट चेंज करना है। तो देयर इज़ वन टेक्स्ट दैट नेम इज लाइन एंड हाइट, ठीक है। लाइन हाइट में आप नॉर्मल लिख सकते हो, आप पिक्सल में भी दे सकते हो आप। तो इन द इनिशियल पेज आई एम जस्ट राइटिंग विद डाउन, है ना। आप
पिक्सल में भी दे सकते हो और लाइन हाइट सेट करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ एंड सेव करता हूँ, तो इन द इनिशियल पेज लाइन इसका हाइट है 2, है ना। मैं अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 10 लिख देता हूँ एंड सेव करता हूँ, अब देखो लाइन का हाइट जो है इसके बीच में जो हाइट स्पेस है दैट विल एडेड 10, राइट। तो अभी 10 अच्छा नहीं लग रहा है, सो आई जस्ट पुट इट ओवर देयर 3 में भी अभी ज़्यादा हाइट है तो 2 पुट कर रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके से हम हाइट दे सकते हैं, 2 भी अभी ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। For example, if you wanted to transform your text in uppercase either lowercase, so you can transform your text like that with the help of text transform, and we can text in capital letter, in capitalize, sorry capitalize नहीं होता, mostly like we are using uppercase, है ना। सेव करो और ये देखो ये टेक्स्ट हमारा अपर केस में चेंज हो गया, है ना। आइदर वी कैन यूज लोअर केस, तो पूरा टेक्स्ट हमारा लोअर केस में चेंज हो जाएगा, है ना। आइदर वी कैन यूज कैपिटलाइज, आइदर नन, है ना। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपर केस सो दैट इट्स लुक्स गुड, ठीक है। सो दिस इज द हेडिंग, ये अपर केस में हमारा दिख रहा है, ठीक है। So these are the CSS text properties, guys. Apart from text properties, you can perform lot of things in CSS. So now my suggestion is कि ठीक है इतना सा प्रॉपर्टी देख पा रहे हो, है ना। तो एक छोटा सा टास्क करते हैं, है ना, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि यू कैन क्रिएट 3 हेडिंग, है ना। जैसे मान लो कि 3 हेडिंग बनाओ, आई एम जस्ट राइटिंग द क्वेश्चन हियर, ठीक है। ठीक है। So now what you need to do, just you need to create 3 heading with 3 tag. That tag name is h1, h2, and we can write h3. Okay, and after that uh, so you need to give a class to all of them, and so give them all a class, okay, and heading, and set color of heading to red, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट है ना। असाइनमेंट दैट्स मीन अभी करना है विद इन 5 मिनट, है ना। तो यू आर यूजिंग लैपटॉप राइट नाउ, है ना। तो अभी लैपटॉप ओपन करो और इसको ट्राई टू यूज दिस पर्टिकुलर, ट्राई टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन, एंड दिस इज़ नॉट वेरी टफ, है ना। जस्ट आपको 3 हेडिंग क्रिएट करना है h1, h2 एंड h3 की मदद से, एंड सब में क्लास एक बनाना है ना। और हर हेडिंग को चेंज करना है, मतलब इट्स नॉट मैंडेटरी कि यू नीड टू चेंज ओनली ऑन रेड कलर, यू कैन अप्लाई एनी ऑफ द कलर, है ना, ताकि प्रैक्टिस भी होता रहे, है ना आपका। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हेडिंग, ऑल अपार्ट फ्रॉम हेडिंग इफ़ यू वांट यू कैन चेंज द सम कलर एंड टेक्स्ट अलाइन एंड ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो अभी करके दिखाओ मुझे, मैं ऐसे करके रखता हूँ, है ना। इफ़ यू वांटेड टू सी दिस पर्टिकुलर कोड लिंक टैग एंड ऑल, तो वो भी बताना, मैं इस तरह ओपन कर दूँ, नहीं आएगा वो, ठीक है। सो यू हैव अ 5 मिनट and just try to do this.
Isn't it clear? Anyone who has completed this task? सर क्लास कैसे देना होता है? सॉरी, क्या बोल रहे हो दीपक? एक बार फिर से बोलना। क्लास कैसे सेलेक्ट करना होता है सर? अच्छा जैसे हेडिंग है तो उसको क्लास कैसे देंगे? अच्छा, ऐसा करना है। देखो सुनो, स्क्रीन यू आर एबल टू सी राइट। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में मान लो कि तुम्हें जो एच वन टैग है, एच वन टैग के अंदर क्लास बनाना है, तो यहाँ पे क्लास बना सकते हो लाइक दैट। और इनसाइड अ क्लास you can give a like heading like that. हेडिंग इज अ क्लास नेम, है ना। और इसी हेडिंग का यूज करके तुम्हें कलर को चेंज करना है। तो कैसे कर सकते हो? तो स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पे स्टाइल टैग या फिर यहाँ पे आ सकते हो, है ना। और इसको पूरा अभी कमेंट कर देते हैं, ठीक है ना। इसको कमेंट कर सकते हैं एंड यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज डॉट हेडिंग HADING एंड इसके अंदर हम लोग कलर चेंज करना था रेड में, है ना। तो कलर यहाँ पे रेड लिख दो, सेव करो और यहाँ पे कलर तुम्हारा रेड हो गया होगा, देखो लाइक दैट, है ना। तो आपको ऐसे ही करना था कि सबसे पहले हमें क्या करना ओके है। सर। हाँ, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी हम H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग बनाते हैं, उसके अंदर हमें क्लास बनाना है। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास वी नीड टू सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर टैग एलिमेंट। सर एक क्लास नेम मल्टीपल एलिमेंट को दे सकते हैं? हाँ, जैसे जितने भी, जैसे एक क्लास नेम मल्टीपल एलिमेंट को दोगे तो मल्टीपल एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे एक ही टाइम पे, है ना। ओके सर।
हो गया सर। ठीक है, डन। Any other, like anyone facing any particular issues, guys, you can ask. You can unmute yourself, you can ask. अगर complete हो गया तो that is good, है ना? 5। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट सर टॉपिक कलर पे। चेंज नहीं हुआ। कलर सेट नहीं हुआ। कैन यू शेयर योर स्क्रीन, साहिल? जस्ट शेयर योर Yes. स्क्रीन एंड शोकेस। डन सर। ओपन विजुअल स्टूडियो को। ठीक है, हेडिंग हेडिंग के अंदर, अरे ये बताओ, स्टाइल टैग के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर वो क्या दिया है, मतलब किस फाइल का पाथ दिया है? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का, वहाँ पे होगा स्टाइल डॉट सी एस एस, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 5। हाँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में लाइन नंबर 5 में जो एच रेफ के अंदर पाथ दिया है, वहाँ पे क्या होना चाहिए? स्टाइल डॉट सी एस एस, है ना? ठीक है, तो बस वहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस कर लो एंड यू आर एबल टू सेट योर यू आर सेट द कलर। पाथ चेंज कर दो प्रोफाइल का। डन सर। ओके, डन ना? ठीक है, फाइन। नाउ गाइस, ठीक है, चलो एक और टास्क करो, है ना? एक छोटा सा टास्क करते फिर से, है ना? मैं दे रहा हूँ क्या क्या करना है। ठीक है, मान जाओ, दिस इज द फर्स्ट टास्क फॉर यू, है ना? इसके अंदर एक word लिख देता हूँ मैं। सेकेंड टास्क कि लाइक क्रिएट अ हेडिंग, सॉरी, create a heading, heading on, create a heading on the page, है ना? पेज पे एक हेडिंग क्रिएट करना है विथ ऑल ऑफ इट्स टेक्स्ट कैपिटलाइज, टेक्स्ट अपर केस बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये आपको करना है कि क्या करना है आपको? फर्स्ट यू नीड टू क्रिएट अ हेडिंग, है ना? एक वेब पेज पे हेडिंग बना लो, और जैसे ही हेडिंग होगा उसके अंदर एक जो टेक्स्ट होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो अपर केस में होना चाहिए, है ना? तो ये आपको सेट करना है, तो इतना करो पहले।
सो ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना था, जस्ट यू नीड टू क्रिएट अ हेडिंग, H1 टैग है, H2 टैग, H3 टैग, एंड उसमें जो यहाँ पे क्या करना था हमें, जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म दैट शुड बी अपर केस, है ना। तो CSS सेलेक्टर का यूज कर लेते है ना, H1 टैग का यूज करके, H1 एलिमेंट का, एंड वहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या कर लेंगे, अपर केस, दैट्स इट। अच्छा, CSS में जैसे यहाँ पे देख सकते हो, HTML में कमेंट करने के लिए हम लोग ऐसे कमेंट करते थे, है ना। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कमेंट एनी पर्टिकुलर थिंग इन HTML, है ना। व्हेन आई टॉकिंग अबाउट CSS, सो CSS में कैसे कमेंट करते हैं हम, CSS में ऐसे कमेंट करते हैं, लाइक मल्टी लाइन कमेंट इन C++, पाइथन एंड जावा लैंग्वेज, सॉरी C++ में करते हैं मल्टी लाइन कमेंट, एंड C लैंग्वेज एंड जावा लैंग्वेज में जैसे करते हैं, है ना, स्लैश स्टार, देन वी कैन राइट अवर कमेंट, है ना, एंड आफ्टर दैट वी कैन क्लोज आवर कमेंट लाइक दैट, स्टार स्लैश का मतलब ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग, है ना। ऐसा लिखोगे तो दैट इज रॉन्ग इन CSS, है ना। ऑलवेज ट्राई टू राइट इन स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश से क्लोज करना है, सो दैट्स हाउ यू कैन राइट अ कमेंट ऑफ इट। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज बॉक्स मॉडल। तो एक बार देख लेते हैं बॉक्स मॉडल क्या होता है ना। जस्ट आई एम क्लोजिंग दिस बॉक्स मॉडल। अभी देखो ध्यान से यहाँ पे देखना, बॉक्स मॉडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली इट इज़ वेबसाइट। सो इन CSS बॉक्स मॉडल, है ना, यहाँ पे देख सकते हो। सो इन CSS द term box model is used when talking about web design and layout, and the CSS box model is essentially a box that wraps around every HTML element. Every box consists of 4 parts. First one content, then padding, then borders and margins. The image below illustrate the CSS box model. देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो सबसे ऊपर क्या है, सॉरी सबसे अंदर क्या है, सबसे अंदर हमारा कंटेंट होता है ना, HTML का कंटेंट होता है, उसके ऊपर क्या होता है, पैडिंग होता है ऐसे, है ना। देन वी हैव अ बॉर्डर, एंड बॉर्डर के ऊपर क्या होता है, मार्जिन। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या क्या बोलते हैं, CSS का बॉक्स मॉडल, है ना। जब इसे नहीं समझोगे, सो यू डोंट हैव एनी पर्टिकुलर आइडिया कि हाउ वी कैन यूज CSS, है ना। तो इसे समझना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अब देखो ध्यान से, एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स फ्रॉम इनर मोस्ट पार्ट और आउटर मोस्ट पार्ट। सबसे पहले क्या है, कंटेंट है। कंटेंट क्या होता है, द कंटेंट ऑफ द बॉक्स वेयर टेक्स्ट एंड इमेज अपीयर। जैसे मान लो कि ये पेज है ना, इसमें वेब पेज, यहाँ मान लो कि ये वेब पेज है, यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे इमेजेस आएगा, तो दैट इज़ नोन एज कंटेंट पार्ट। और उसके बाद आता है पैडिंग। पैडिंग क्लियर एंड एरिया अराउंड द कंटेंट, द पैडिंग इज ट्रांसपेरेंट, है ना, ये ट्रांसपेरेंट होता है। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू गिवन अ बॉर्डर दैट गोज अराउंड द पैडिंग एंड कंटेंट, है ना। एंड उसके बाद होता है मार्जिन, क्लियर एरिया आउटसाइड द बॉर्डर एंड मार्जिन ट्रांसपेरेंट। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, डेमोन्स्ट्रेट विथ बॉक्स मॉडल, ठीक है। तो मान जो कि एक डिप टैग बनाते हैं, डिप टैग के अंदर सेम चीज़ ट्राई टू यूज सेम थिंग एंड देखते हैं आउटपुट क्या आता है ना। सो मान जाओ कि दिस इज वी आर यूजिंग H1 टैग एंड P टैग, है ना। इसका मैं यहाँ से कट करता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ मैं डिप टैग। इनसाइड अ डिप टैग आई एम जस्ट यूजिंग दिस ऑल द थिंग्स, है ना। एंड डिप टैग के अंदर हम क्या कर लेते हैं, क्लास बना लेते हैं, ठीक है। क्लास यूर एबल टू सी राइट, क्लास के अंदर लिख लेते हैं दिस इज फॉर मॉडल, बॉक्स मॉडल, तो बी मॉडल लिख लेते हैं, दैट इज अवर क्लास बी मॉडल, ठीक है। जस्ट सेव इट, गो टू द स्टाइल डॉट CSS पार्ट, है ना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट बी मॉडल, ये हमने लिखा था, इसके अंदर जाएंगे। अब हमने बी मॉडल की मदद से हम पूरे इस डिप टैग को सेलेक्ट कर लिया, है ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, वी आर गोइंग टू यूज, अच्छा आइदर देखो अभी तो मैंने बी मॉडल की मदद से उसको सेलेक्ट किया, बट इफ़ यू वांट यू कैन डायरेक्टली यूज div here, है ना।
अब देखो विथ क्या है, यहाँ पे विथ है 300 पिक्सल। चलो लिखते हैं। सो जो विथ है हमारा दैट इज़ 300 पिक्सल, है ना। इसको सेव करो और यहाँ पे जाओ। हाँ, अब देखो विथ यहाँ पे हमारा कितना लेआउट चेंज हो गया। पहले फुल स्क्रीन पे हमारा आ रहा है, अब 300 मतलब 50%, 50 क्या 30% स्क्रीन पे आ रहा है ना। मैं इसको और बढ़ाता हूँ थोड़ा, 500 पिक्सल करता हूँ, है ना। अभी देखो थोड़ा सा बढ़ा मेरा, है ना। सिमिलरली इफ आई एम पुट इट ओवर देयर फॉर एग्जांपल 1500 पिक्सल, अभी देखो ऐसे हो गया, है ना। मैं यहाँ पे 1000 पिक्सल पे करता हूँ इसको सेट। अभी देखो 1000 पिक्सल पे, मतलब ऐसा देखो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से 10, 20, 30, 40, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 लाइक दैट, है ना। तो ये प्रॉपर पिक्सल ऐसे हो रहा है, मतलब ये है विथ, है ना। इसको बोलते हैं विथ ऑफ और बॉक्स मॉडल। अब देखो बॉर्डर, तो बॉर्डर सबसे पहले यहाँ पे 50 पिक्सल है, देन सॉलिड दिया है, उसके बाद ग्रीन दिया है। सेम चीज़ हम कॉपी करते हैं यहाँ से, है ना, और यहाँ पे पोस्ट करके देखते हैं, पेस्ट करके देखते हैं क्या चाहिए। तो आई एम जस्ट सेंडिंग सेविंग दिस कोड एंड यहाँ पे जाता हूँ। अब देखो ध्यान से कि हमने सबसे पहले क्या दिया था, विथ दिया था। तो विथ क्या दिया था, 1000 पिक्सल, तो 1000 पिक्सल इतना आ गया, है ना। अब इसी चीज़ को, मतलब जो हमारा कंटेंट है उसको हमें क्या करना था, किसके अंदर, बॉर्डर के अंदर डालना है। तो बॉर्डर जो बनाया है यहाँ पे, जो बना है वो 15 पिक्सल का बॉर्डर है ना, सॉलिड है और ग्रीन कलर का है ना। इफ़ यू वांटेड टू चेंज द, इफ़ थोड़ा सा मार्जिन चेंज कम करना है तो 10 पिक्सल कर दो, थोड़ा सा पतला हो जाएगा बॉर्डर, है ना। यू आर एबल टू सी, है ना। ग्रीन की जगह यू कैन चेंज एनी पर्टिकुलर कलर, तो यहाँ पे क्लिक कर लो और जो भी कलर आपको चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल पिंक टाइप में, तो यहाँ पे करके पिंक चेंज कर सकते हैं। अभी देखो ये पिंक, मतलब पिंक तो नहीं है, इट्स लुक्स लाइक ब्रिंजाल कलर और लिटिल बिट, बैगन के जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये बोला जाता है बॉर्डर। एंड आफ्टर दैट देयर इज मोर थिंग विच इज़ पैडिंग, है ना। तो पैडिंग देखो, पैडिंग चेंज करने के बाद 50 पिक्सल पे क्या होता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट योर पैडिंग एंड आई एम गोइंग टू राइट योर 50 पिक्सल एंड जस्ट सेव इट एंड गो ओवर देयर। देखो जैसे मैंने पैडिंग डाला तो यहाँ से, इधर से, इस साइड से और इस साइड से, चारों तरफ से स्पेस मुझे मिला, है ना। दैट इज़ नोन एज पैडिंग। एंड उसके बाद मार्जिन, चलो मार्जिन डालते हैं। सो इसको 50 से कम कर देते हैं बिकॉज 50 ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। 20 पे देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। 20 पे अभी थोड़ा इट्स लुक गुड। देन मार्जिन सेट करते हैं, है ना। तो मार्जिन, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट हियर मार्जिन एंड मार्जिन को हम लोग क्या करते हैं, 20 पिक्सल, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल एक बार डाल के देखते हैं, दैन वी कैन चेंज। तो क्या मार्जिन, मार्जिन क्या चेंज हुआ, क्लियर द एरिया आउटसाइड द बॉर्डर, मार्जिन ट्रांसपेरेंट। बॉर्डर के बाहर का जो स्पेस है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस, दैट इज़ नोन एज मार्जिन, है ना। अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, है ना, सेव करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये मार्जिन ख़त्म हो गया इधर से, है ना। और मैं इसको जब अनकमेंट करता हूँ तो यहाँ से इसके बीच में मार्जिन कुछ ना कुछ दिख रहा है थोड़ा बहुत। इसी तरीके से यहाँ पे 40 डाल सकते हो एंड यू कैन पुट द मार्जिन। 40 का मार्जिन हो गया ऊपर से भी और नीचे से भी, ठीक। तो इस तरीके से हम किसी भी मॉडल को, जैसे मान लो कि कोई भी चीज़, कोई भी वेब पेज को डिज़ाइन करना है, वेब पेज में छोटा सा पार्ट है और एक प्रॉपर मॉडल के अंदर डालना है हमें, है ना। सो वी कैन डिज़ाइन लाइक दैट, है ना। आई होप गाइस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, है ना। देखो इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग कि मॉडल क्या होता है, विथ कैसे सेट करते हैं, बॉर्डर कैसे लगाते हैं, पैडिंग कैसे करते हैं, मार्जिन कैसे करते हैं, ठीक है। देन क्लास सेलेक्टर का यूज़ कैसे करते हैं, देन पैराग्राफ एलिमेंट को, पी एलिमेंट को मतलब सेलेक्ट करके कैसे चेंज कलर करेंगे, फॉन्ट फैमिली क्या होता है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है ना, फॉन्ट साइज क्या होता है, फॉन्ट फिट क्या होता है। ये चीज़ें धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। बट यू नीड टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरीथिंग, है ना। बिना प्रैक्टिस किए नहीं आएंगी चीज़ें, है ना। सो आई होप गाइस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बॉक्स मॉडल, है ना। या
any particular questions, so you can ask. इसके अंदर हाइट भी डाल सकते हो, बॉक्स मॉडल के अंदर यू कैन इंसर्ट हाइट एज वेल, जैसे विथ है उसी तरीके से हाइट भी डाल लिख सकते हो, है ना। हाइट को मान जाओ कि मैं 100 लिख देता हूँ, 100 पिक्सल, है ना। तो हाइट कौन सी होती है, जैसे ये वाली जो हाइट होती है दैट इज़ नोन एज 100 पिक्सल हाइट। तो यहाँ से देखो कुछ तो स्पेस रहा इसमें, है ना। अगर मैं इसको कम करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 50 करता हूँ, सेव करता हूँ, वो हाइट ऊपर चली गई, है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि इधर 0 पिक्सल करता है पर मैं देखता हूँ आउटपुट क्या रहा है, तो आउटपुट ऊपर चला गया, है ना। तो बाई डिफ़ॉल्ट दैट्समीन मुझे लगता है 150 के अराउंड होना चाहिए, तो भाई हाइट आके एडजस्ट होगा, इस तरीके से 150 के अंदर एडजस्ट हो गया, है ना। सो हाइट दैट्समीन दिस हाइट की, इस हाइट की बात हो रही है, ये वाली जो हाइट है। इसी तरीके से हमने हाइट देख लिया, विड्थ देख लिया, बॉर्डर देख लिया, पैडिंग देख लिया, मार्जिन देख लिया, है ना। देन बॉर्डर में बॉर्डर का विड्थ भी होता है, वी कैन चेंज द बॉर्डर विड्थ, वी कैन चेंज द बॉर्डर का स्टाइल जो होता है उसको भी चेंज कर सकते हैं, है ना। बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर का स्टाइल जैसे मान लो कि ये बॉर्डर है ना, पहले एक बॉर्डर बन गया, बॉर्डर का मैं ऐसे चेंज करता हूँ, देखो ध्यान से, बॉर्डर स्टाइल, स्टाइल, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉटेड, बॉर्डर का स्टाइल जो है डॉटेड करता हूँ। तो अभी देखो देखो ध्यान से कैसा हो गया बॉर्डर का स्टाइल, इट्स डॉटेड में हो गया। पहले कैसा था, पहले इस तरह लाइन खींचा हुआ था, है ना, अब ये डॉटेड हो गया। इसी तरीके से डॉटेड को हटा के कुछ और भी कर सकते हैं, राइटिंग ओवर दिया डैश्ड, ठीक है। अब देखो डैश कैसा हो गया, डैश 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 लिख के आ गया बॉर्डर का स्टाइल, है ना। तो इस तरह बहुत सारे फीचर्स हैं, है ना, जितना एक्सप्लोर करोगे यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। तो 3 चीज़ें होती हैं, सॉलिड, डॉटेड, डैश, है ना। और सॉलिड इसके पहले हम पहले जो यूज कर रहे थे दैट इज़ सॉलिड ओनली, है ना। तो यहाँ पे बस सॉलिड के जगह में कर दो डॉटेड, सेव इट, ये डॉटेड हो गया, है ना। तो अगर चाहोगे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, कैन राइट बॉर्डर विथ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, एंड तीनों को एक साथ में लिखना है तो जस्ट राइट बॉर्डर एंड आफ्टर डैट यहाँ पे ये विथ सेट होता है, इससे सेट होता है हमारा स्टाइल, एंड ये होता है कलर, तीनों को एक साथ में लिख सकते हैं। देन बॉर्डर का जो रेडियस है, यू कैन इंक्रीज द रेडियस और डिक्रीज द रेडियस एज वेल, है ना। राउंड कॉर्नर पे जो आता है, जैसे दिखाता हूँ मैं, इसको मैंने पहले सॉलिड करता हूँ ताकि अच्छा लिखे, है ना। सॉलिड ये हो गया, एंड मुझे अब रेडियस लगाना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बॉर्डर, देन रेडियस, एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है। अब देखना, जैसे रेडियस पे क्लिक करा तो देखो यार पहले पहले क्या था कि पहले यहाँ पे, अभी देखो पहले इसको अनकमेंट करना था, अभी अनकमेंट किया तो देखो ध्यान से यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं है, एकदम प्रॉपर चारों तरफ से रेक्टेंगल टाइप का शेप आ रहा है, राइट। अगर मैंने रेडियस 10 पिक्सल लगाया तो यहाँ पे देखो प्रॉपर बेंड हो गया चारों तरफ से, है ना। सो दैट इज़ नोन एज रेडियस, इस तरीके से। सिमिलरली अभी तो 10 पिक्सल है, यू कैन यूज 20 पिक्सल हो गया, अब देखो 20 पिक्सल पे और ज़्यादा बैंड हो गया, सो दैट इज़ नोन एज रेडियस। ठीक है। सो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए, जैसे थर्ड क्वेश्चन देता हूँ मैं यहाँ पे, मैंने इसको कर लो एक बार। तो मान लीजिए कि तुम्हें क्या करना है कि एक डिव क्रिएट करना है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे डिव क्रिएट किया इनसाइड बॉडी टैग। डिव टैग के अंदर एक क्लास बनाना है, तो सबसे पहले मान जाओ कि क्रिएट अ डिव,
and inside it create a class and select that particular class, select that class, select that class और select करने के बाद क्या करना है तुम्हें, उसका जो हाइट है, सेलेक्ट करने के बाद जो हाइट है, हाइट एंड विथ, हाइट एंड विथ 100 पिक्सल सेट करो, है ना। इसके अलावा उसका जो बैकग्राउंड कलर है, जो बैकग्राउंड कलर है उसको सेट करो येलो, ठीक है, येलो, ठीक है। एंड जो बॉर्डर का रेडियस है उसको सेट करो, रेडियस 40 पिक्सल, ठीक है। इतना करके दिखाओ मुझे। सो सबसे पहले क्या करना है, एक डिप क्रिएट करना है, डिप टैग के अंदर एक हेडिंग लिख लेना और सब थोड़ा बड़ा कंटेंट लिख लेना। उसके अंदर एक क्लास बना लो, उस क्लास को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद उसका जो हाइट एंड विड्थ है 100 पिक्सल कर लो, उसका बैकग्राउंड चेंज कर लो, बैकग्राउंड कलर शुड बी येलो एंड बॉर्डर रेडियस शुड बी 40 पिक्सल। ये करके दिखाओ मुझे अभी।
हो गया सबका? यस सर। ठीक है। सो आई होप गाइस लाइक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, है ना? तो जितना ज़्यादा हो सके ट्राई टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरीथिंग, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू, है ना? ठीक है। से हो गया हमारा वॉक्स मॉडल। तो आज के लेक्चर में इतना रहने देते हैं, बिकॉज लाइक वी आर कवर लॉट ऑफ थिंग्स, है ना? अगर इससे ज़्यादा कवर करूँगा तो विल फॉरगेट लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है। तो अभी मैं एक कोड पुश कर दूँगा गिटहब पे। अभी नेक्स्ट काम क्या है आप लोगों का? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी थिंग, लाइक जितना मैंने कराया, जैसे कलर, टेक्स्ट अलाइन, फॉन्ट फैमिली। तो एक प्रॉपर वेबसाइट तैयार करो, है ना? प्रॉपर वेबसाइट बनाओ, है ना? आई एम नॉट सेइंग कि बहुत बड़ा वेबसाइट बनाना है, जस्ट यूज़ सम ऑफ द पैराग्राफ, जैसे मान लो कि ऐसे ही बनाओ, ऐसे HTML का यूज़ करो, है ना? यहाँ पे काम किया CSS इंट्रोडक्शन पे, एंड जस्ट गो टू द होम पेज, है ना? होम पेज के अंदर यहाँ पे जाओ, कहाँ था ये कोड तो था, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल इसी का क्लोन बनाओ सेम वेबसाइट का, है ना? तो इसी वेबसाइट पे ऐसे बनाओ एंड ट्राई टू पुट ओवर दिस दिस हेडिंग, देन साइड बार उसमें लगाओ, फिर ये वाला बार लगाओ उधर, है ना? और उसको डिफरेंट स्टाइल से उसको कलर करो, चेंज करने का ट्राई करो, ताकि अच्छा दिखे, है ना? ऐसे कर सकते हो। तो इसमें से कोई भी, जैसे मान लो कि अभी स्टाइल सेट 3 ले लेता हूँ, तो स्टाइल सेट 3 में बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है इसे, है ना? और दिस इज़ वेरी नॉर्मल पेज, इट्स नॉट वेरी डेंजरस पेज। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देखो, लोरेम से टेक्स्ट जनरेट कराया गया, सो यू कैन जनरेट टेक्स्ट फ्रॉम लोरेम एंड यू कैन ट्राई टू डिजाइन दिस टाइप ऑफ वेब पेज, एंड दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू फॉर प्रैक्टिसिंग HTML and CSS, है ना? Any other question, guys? Any other question or doubt if you have, so you can ask, है ना? हेलो या यू कैन सर, जो आस्क। आपने वो असाइनमेंट भेजी थी जो फर्स्ट वाली, हाँ हाँ। सर उसमें आपने मतलब 2 क्वेश्चन दिए हैं। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो वेबसाइट का एनालिसिस करना है, सर उसका थोड़ा एक बार बता दो। वेबसाइट का एनालिसिस करना है, वेट आई नीड टू चेक द असाइनमेंट लिंक फर्स्ट। सेकंड असाइनमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट? फर्स्ट सर। फर्स्ट असाइनमेंट कहाँ से मिलेगा? असाइनमेंट लिंक कहाँ से? Basically this assignment is created by like who is working in Tiran technology, उसके जो डेवलपर्स होते हैं मोस्टली दे आर created that सर ये particular. सेकंड असाइनमेंट है। Yeah, this is the very easiest assignment. Just you need to create a form, and I think like we already completed this सर thing. फर्स्ट असाइनमेंट। अच्छा, कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया। अच्छा से फर्स्ट असाइनमेंट, या इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा? सर इसमें ना हमें वेबसाइट का मतलब वो बताना है, कलर पैलेट और हम्म। टोपोग्राफी। सर जब हम वो वेबसाइट को इंस्पेक्ट करते हैं तो उसमें कंफ्यूजन हो रही है कि कैसे वो एनालाइज करना है। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो कि कोई भी वेबसाइट ओपन कर लो, है ना? अ, कोई भी वेबसाइट ओपन कर लो, कोई भी वेबसाइट रिलेटेड टू HTML और CSS, है ना? ठीक है, जैसे मान लो कि ये वेबसाइट एक ओपन हो गया, ठीक है? इस पर राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, और इसमें क्या क्या नहीं समझ में आ रहा है इंस्पेक्ट करने पे? जस्ट क्लिक ओवर दियर। या यू कैन अनम्यूट एंड आस्क क्वेश्चंस। क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें इंस्पेक्ट सर करने पे? जैसे हमने इसमें फॉन्ट हम्म। इसमें फॉन्ट साइज निकालना हो, अच्छा, जैसे वेबसाइट में फॉन्ट साइज निकालना हो तो फिर सारों का अलग अलग मतलब बताना है। what is assignment is there, color, choose any 5 website, analyze color, planet, typography, layout, structure, CTF placement, visual hierarchy, target audience, then here design, hero section, pages, browsing. जस्ट देखो जितना समझ में आ रहा है, यू कैन कंप्लीट दैट पर्टिकुलर पोर्शन।
जो नहीं समझ में आ रहा है यू कैन स्किप, बिकॉज सी लाइक दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर डेवलपमेंट असाइनमेंट, राइट? दैट इज टोटली रिलेटेड टू UI UX असाइनमेंट, है ना? तो मान जाओ कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लाइक लर्निंग फ्रॉम दिस PDF एंड इफ़ यू वांटेड टू कंप्लीट लाइक इंटायर असाइनमेंट पूरा, तो माइट बी देयर आर सम ऑफ द थिंग्स विच यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो दिस इज़ द 5 वेबसाइट। अच्छा, कलर प्लेटें, जैसे मान लो कि पहले ही वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, कलर प्लेट इस वाले वेबसाइट को, ठीक है? वेबसाइट है नहीं क्या? कलर प्लेटें जनरेटर, कलर प्लेटें, ठीक है। एक कलर प्लेटें वेबसाइट ओपन कर लिया, फिर इसमें क्या कर रहा है? डिजाइन एक्सरसाइज, क्रिएट अ लैंडिंग पेज डिजाइन फिग्मा प्रेफर्ड फॉर AI लर्निंग। बस इसको ओपन करना है, ठीक है? कलर प्लेट वेबसाइट, राइट? एंड यू नीड टू एनालाइज दिस वेबसाइट कि क्या क्या चीज़ें इसमें यूज हुई हैं, है ना? जैसे मान लो कि इसको ओपन करो, इसमें देखो क्या क्या चीज़ें यूज हुई हैं, कितने सेक्शंस हैं, क्या क्या कलर्स हैं, वाट आर दीज कलर्स, बैकग्राउंड कलर्स क्या हैं, नॉर्मल कलर्स क्या हैं, जस्ट यही देखना है। इसमें देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हेक्साडेसिमल्स में कोड दिए गए हैं फॉर दैट पर्टिकुलर कलर्स, तो इसको नोट कर सकते हो प्रॉपर, है ना? डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, तो यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट ओवर योर, है ना? जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करके कंप्लीट कर लो इस असाइनमेंट को। ज़्यादा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें एक बस कलर प्लेटे करके वेबसाइट को ओपन कर लो, उसमें एनालाइज करो, एनालाइज करके बाद लिख लो, काम खत्म, ठीक है? सेकेंड में डिज़ाइन एक्सरसाइज है, तो क्रिएट अ लैंडिंग पेज डिज़ाइन फॉर फिग्मा प्रीफर्ड। तो मान लो कि इसको AI लर्निंग प्लेटफॉर्म मुझे बनाना है, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? हीरो सेक्शन होना चाहिए, फीचर सेक्शन होना चाहिए, टेस्टिमोनियल होना चाहिए, प्राइसिंग होना चाहिए, फुटर होना चाहिए, ठीक है? और ये रूल्स दिए गए हैं उसको बनाने के लिए, है ना? कि 3 कलर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, 2 फॉन्ट फैमिली यूज़ कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स, ये रूल्स यूज़ कर सकते हैं 60-30-10, आइदर 80-10-10। मोबाइल फ्रेंडली लेआउट चाहिए और मॉडर्न सास स्टाइल चाहिए, है ना? तो ये एक बार समझो, है ना? मोस्टली फिग्मा से बन जाएगा, है ना? अपार्ट फ्रॉम फिग्मा, अगर अपार्ट फ्रॉम फिग्मा डिज़ाइन अगर कुछ और मिल रहा है उसके बनाने के लिए, है ना? तो वेबसाइट, बस वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना है ना? कि उसका हीरो सेक्शन कैसा होगा, उसके फीचर्स क्या क्या होंगे, तो फीचर्स के लिए अलग अलग फीचर्स उसी वेबसाइट में फिग्मा डिज़ाइन बना सकते हैं, फिर टेस्टोमिनियल का अलग सेक्शन बना सकते हैं, उसी के नीचे प्राइजिंग वाला सेक्शन डाल सकते हैं, और एनी पर्टिकुलर टैब बना सकते हैं, टैब पे कोई क्लिक कर रहा है तो प्राइजिंग वाला सेक्शन ओपन होना चाहिए लाइक दैट, और उसी के नीचे फुटर बना सकते हैं, है ना? ये कोडिंग करके नहीं बनाना, दैट इज़ फिग्मा डिज़ाइन, है ना? तो फिग्मा प्रीफर्ड दिया गया तो फिग्मा का यूज़ करो, फिग्मा पे लॉगिन करो, क्रिएट करो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन यूज़ फिग्मा, है ना? और अगर पूरा चीज़ नहीं बन पा रहा है तो दैट इज़ ओके, होता है इनिशियल फेज में, ऐसा नहीं होता कि नहीं होगा, 50% ही बस असाइनमेंट होगा तो पूरे मार्क्स कट जाएंगे, है ना? ऐसा कुछ नहीं है ना? जस्ट प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए असाइनमेंट हम लोग देते हैं, है ना? तो इसको प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, एंड सबमिट करने के लिए PDF में जो भी फिग्मा डिज़ाइन का जो लिंक आपने बनाया उस लिंक को सबमिट करना सर है। ये असाइनमेंट या एक्सक्यूज मी सर, जो नहीं असाइनमेंट और जो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर है वो सर कहाँ पे, मतलब हमने गूगल पे क्या सर्च करना था कि वहां पे ट्रियन मिलेंगे? टेक्नोलॉजी, जिस दिन सर उन्होंने बताया था दूसरे, ट्रियन उस दिन टेक्नोलॉजी, सर नेटवर्क का इशू था तो पता नहीं लगा। जस्ट सर्च ट्रियन टेक्नोलॉजी, this one, Trian Technology, just search and you are able to see this website triantechnology.com, है ना? एंड यहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं इनके, सो देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट इज देयर, और तो यहाँ पे आप LMS पोर्टल को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, स्कूल CRP को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे एक्सप्लोर पे प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद थोड़ी सारी चीज़ें थी, एंड यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम पे क्लिक करो एक बार, एंड विजिट हियर,
definition, curriculum building, skills, field management, HR portal, explorative LMS यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लोर पे क्लिक करो एक सर बार। कोर्सेज का भी बता देना कि कहाँ पर पता चलेगा। हाँ, तो जैसे यहाँ पे एक्सप्लोर पे क्लिक करना, इन एकेडमिक पे क्लिक करना यहाँ पे, है ना। इन एकेडमिक पे क्लिक करने के बाद यू नीड टू डू लॉग इन एंड ऑल। सर इसी में ऊपर साइन अप का ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ से शायद लॉगिन। अच्छा ठीक है, got it। तो यहाँ पे पहले तो अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, है ना। तो मैंने भी अभी तक अकाउंट नहीं बनाया, जस्ट ट्राई टू क्रिएट अकाउंट फर्स्ट। ठीक है, क्रिएट अकाउंट विद योर। जैसे अकाउंट एक बार क्रिएट कर लोगे, जो रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, देन यू नीड टू क्लिक ऑन साइन इन बटन। इसको सेव कर लो, यहाँ पे आके मेल आईडी डालो, है ना। either you can go with continue with Google option, ऐसे ही चलेगा। था ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे वेब डेवलपमेंट कोर्सेस है, इसको साइन अप कर रहे हैं। सर इसमें जो नीचे कोर्सेस दिखा रहा है उसमें फ्रंट एंड वाले में जाके इनरोल होना है। अच्छा ओके, गॉट इट। सो यहाँ पे क्या करना है, फॉर एग्जांपल मान लो कि फ्रंट एंड का कोर्स दिख रहा है इसमें, मर्न स्टैक, यू आर टॉकिंग अबाउट मर्न स्टैक, दिस वन। फ्रंट एंड तो देख ही नहीं रहा नो मुझे। सर, फ्रंट एंड का एक है। अच्छा अच्छा, देयर इज़ वन ऑप्शन व्यू कोर्सेज, राइट। इस पर शायद क्लिक करना था, एंड इसको ओपन करो, साइन अप करो। साइन अप करने के बाद जावा फुल स्टैक, डाटा एनालिटिक्स, फ्रंट एंड दिख रहा है क्या किसी को यहाँ पे? सर व्यू ऑल पे क्लिक कीजिए ना। सर इसमें फ्रंट एंड में जाके सर बस फर्स्ट मतलब एक ही वीडियो आ रहा है सर सर। कंटिन्यू विथ गूगल कर लीजिए। एक मिनट, कहाँ पे है सर यहाँ व्यू ऑल कोर्सेज पे चले जाओ। व्यू ऑल कोर्सेस, मैं क्लिक कर रहा हूँ, कंटिन्यू विथ कंटिन्यू गूगल। विथ गूगल। ओके, अभी भी मुझे नहीं आ रहा। सर अब एक बार जाना व्यू ऑल कोर्सेज पे। बार बार वही पेज आ जा रहा है रीडायरेक्ट होके। फ्रंट एंड डेवलपमेंट। सर मेरे में एक्चुअली ये चल रहा था, लेकिन जब फ्रंट एंड में जाके एनरोल होते हैं तो वो सिर्फ स्टार्ट के बाद सिर्फ एक ही वीडियो दिखाता है सर। हाँ, वो एक्चुअली देयर आर लिटिल बिट इशू विथ वीडियो लाइक सेशंस। बेसिकली मैंने रिकॉर्ड किया सारे लेक्चर्स, है ना, बट उसका क्या करना है कि वी आर प्लानिंग टू लाइक अपलोड दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑन यूट्यूब, एंड यूट्यूब का लिंक वहाँ पे इंसर्ट करना है ना। सर एक्चुअली सिर्फ एक ही वीडियो का लिंक है वो। हाँ हाँ, गॉट इट। 20 minutes का। हाँ, तो सारे वीडियोज़ का लिंक आ जाएगा विद इन 1 to 2 days।
ओके। ओके सर। हाँ, पता नहीं क्यों मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा, आई डोंट हैव आइडिया अबाउट इट, मुझे देखना पड़ेगा। क्योंकि ऑल कोर्सेज पे कर रहा हूँ तो रीडायरेक्ट हो जा रहा है इस वाले पेज पे, लॉगिन पेज पे, एंड हो नहीं पा रहा। मतलब वे ऑल कोर्सेज पे करके जस्ट यू नीड टू रजिस्टर ऑन फ्रंट एंड डेवलपमेंट, एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट जैसे रजिस्टर करोगे तो यू आर एबल टू सी द वीडियो लिंक एंड सबमिशन लिंक, राइट। क्या मतलब, तो गूगल ड्राइव पे अपलोड करके वहाँ से सबमिट करना है असाइनमेंट को, दैट इज़ योर टास्क, राइट, है ना। तो ये कर लेना, है ना। वीडियो के लिए मैं कुछ करता हूँ, आई नीड टू अपलोड इंटायर वीडियो ऑन यूट्यूब एंड आई नीड टू गिव द 1 by 1 लिंक, आई नीड टू एड ओवर द 1 by 1 लिंक फ्रॉम बैक एंड साइड। तो एक बार मैं देख लेता हूँ क्या करना है उसके लिए, है ना। टिल डेट गाइस वो तो करना ही करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रैक्टिस, ट्राई टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी टैग विच वी आर कवर टिल डेट, राइट। जितना भी हमने टैग कवर किया है जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरीथिंग। इसके आगे का हम लोग आने वाले टाइम दोबारा करेंगे, कल देख लेते हैं इसके आगे का। तो सी एस एस विल ट्राई टू कवर लाइक सी एस एस इन दिस वीक एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट प्रोजेक्ट, है ना। सो एक प्रोजेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS, देन विल मूव जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। चलो ठीक है यार, चलो मिलते हैं कल के लेक्चर में, है ना।